Rashmi Kathuria, when I joined this school, I used to hear about her when I was in Kulachi, in DAV Pushpanjali, because she got one ICT award I just don't remember the year at that time, with the APJ, then President APJ Abdul Kalam. That was with the CI Foundation, because she made one presentation and of mathematics, and that presentation she won that presentation award. That is with I was there when she was getting the prize at Taj Hotel, and she got one laptop, and that was years back. I am telling about. At that time the laptops were not that popular. So I was very impressed, because I wanted to see her work. When I came in Kulachi Hansraj Model School, at that time she was working for different thing. She was working for ISA award. Being a mathematics teacher, I was shocked, because with her one ICT teacher, computer teacher, Mrs. Nita Arora was working. But with the enthusiasm she was working at that time, I was impressed, because whatever you do, give her, she puts 100%. That is the beauty of Mrs. Rashmi Kathuria, I will tell you. So, being a mathematics teacher, you can see the objects she made. Here you can see, and she uses sometime the ICT also in mathematics, be it a Manga High. She just, I can't tell you, you can say that we have to want it. That is why I say she puts 100% in any project you give her, and that will be succeeded, and you can sleep after that, after giving her anything. Mathematics is a beautiful subject. It is full of incredible creativity. But people think it is abstract and boring. As a teacher, I think it is a subject which is an integral part of our life. I normally tell to my students that mathematics is embedded in every part of life, in every phase of life, be it our childhood, or when we become young, or we grow and we become old, we have to use mathematics. Mathematics is a subject which has many elements associated with it. In mathematics, we study different fields, like we study geometry, we study algebra, but in earlier times we have studied all these things on a board, and we have practiced maths in the notebook. That was the only way, traditional way to learn mathematics. I used to think that there is something else which can be added to the math classroom, which can make this subject more interesting, more engaging, more productive. This is the thing which used to bother me in my mind. अब देखिए, सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स है। अगर मैं इसको खाली सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की तरह पढ़ाऊँ तो मुझे सिर्फ वही चीज़ें करानी है जो मुझे करिकुलम में दी गई हैं या सिलेबस में दी गई हैं। बट जो ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है वो लाइफ का हिस्सा है। जब तक हम उसे लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक वो इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। हम सबको पता है कि कोई भी बच्चा 12th क्लास पास कर जाता है या ग्रेजुएशन कर जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाता है या कोई डिग्री ले लेता है, फिर भी वो इसके कैपेबल नहीं बनता कि उसको उसकी मनपसंद नौकरी मिल जाए। वो कतार में लगा हुआ है।
तो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, कितने सारे ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाएँ। तो ये बात मुझे हमारी प्रिंसिपल, जो करंट प्रिंसिपल हैं मिसेस स्नेह वर्मा, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक प्रोग्राम शुरू किया स्कूल में, स्कूल एंटरप्राइज चैलेंज है जिसका नाम। और ये एक प्रोग्राम टीच अ मैन टू फिश, यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने शुरू किया। और उन्होंने जब इस प्रोग्राम के बारे में मुझे बताया तो मैं इस बात का लिंक जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया है उस प्रोग्राम के ज़रिए सॉल्यूशन के तौर पर सोच पाई। तो एक ये मौका था एक टीचर के पास कि कैसे स्कूल एंटरप्राइज चैलेंज के ज़रिए मैथमेटिक्स यूज़ करते हुए और बाकी सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को केपेबल बनाया जाए, एक जॉब क्रिएटर बनाया जाए, उन्हें एक हुनर दिया जाए। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज पे बच्चा बिजनेस आइडिया सोचता है, जिसमें वो जितने भी स्कूल में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या उसकी जो स्किल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वो आइडिया प्लान करते हैं। सेकेंड स्टेज पे वो फाइनेंशियल प्लान डेवलप करते हैं और थर्ड स्टेज पे जो भी उन्होंने प्लानिंग की होती है उस बिज़नेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस 1 साल में कंप्लीट होती है और साल के एंड में जितना भी प्रॉफिट वो अर्न करते हैं वो सोशल कॉज के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब आप इस पूरे प्रोजेक्ट को अगर सोचिए तो आपको एक आइडिया आएगा दिमाग में कि बच्चा इस पूरे प्रोसेस में मैथमेटिक्स के साथ साथ लाइफ स्किल्स को सीख पा रहा है, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को सीख पा रहा है। I am teaching English, and with Rashmi I learned that how English and maths can be combined. I swear I never knew this. Rashmi had really made me realize this. Yes, while I'm teaching English, I make the children do surveys, go for the research work, explore, writing the reports, writing things in a sequence, in a chronological order. This is what Rashmi told me, this is maths. Oh, how interesting. I am really amazing to know maths and English can also be combined. When I say science, of course. Maths is somewhat, according to Rashmi, is the way of life, is the part of life. I never realized it until or unless she told me. Why in the kitchen when you buy groceries, isn't it maths involved? When I am measuring while cooking, it is maths involved? Oh yes, how interesting. If I knew maths was so interesting, I would have definitely have enriched myself. Like many common students, I also had math phobia. But now I tell the children, there is no need to be scared of maths. बट मुझे फिर भी लगता था कि वहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए धूम धमाका टाइप कि सारे बच्चे ये कहें येस आई लव मैथमेटिक्स, आई कैन डू मैथमेटिक्स। तो मैं 2003 में लकीली मुझे वो मैथ्स लैब मिला और उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा कि मैं मैथ्स की टीचर हूँ क्या हूँ, आई डोंट नो। एक हर दिन एक नया लर्निंग की तरह मेरी लाइफ में आया। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। 2000 में जब हमारा मैथ्स लैब बना, 1 साल हो गया, उसके बाद हमारा एनुअल डे था। तो हमारे एनुअल डे में CBSE से कुछ एक्सपर्ट्स आए थे विज़िट करने के लिए। तो हमारी हेडमिस्ट्रेस मैम उनको मैथ्स लैब विज़िट कराने के लिए लेकर आई। उन्होंने मैथ्स लैब विज़िट किया और देखा कि यहाँ पर कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू मैथ्स पढ़ाया जाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद एक प्रोफेसर लैब में आए, उन्होंने एक इंटरैक्शन किया कि किस तरीके से आप ये मैथ्स लैब में एक्टिविटीज़ कराते हैं। तो मैंने उनको, उस समय मैं बहुत यंग थी और मैंने उनको बड़ी एक्साइटमेंट में जितनी भी एक्टिविटीज़ मैथ्स लैब में थी, मॉडल्स और जो भी हम स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते थे वो सब डेमोन्स्ट्रेट करके बताई। वो मेरे पास 2-3 घंटे तक बैठे रहे और लेकिन मुझे भी कोई घर जाने की जल्दी नहीं थी क्योंकि मैं चाहती थी कि कोई एक एक्सपर्ट, एक मैथ्स एक्सपर्ट इन्हें देखे और समझे। फिर थोड़े दिनों के बाद मेरे पास एक ईमेल आया, उसमें बड़ी ही एक्साइटिंग सी न्यूज़ थी कि आपको 9th क्लास के लिए मैथमेटिक्स लेबोरेटरी मैनुअल लिखना है। वो मैथ्स का वो ईमेल जो था वो CBSE के थ्रू था। आप सोच सकते हैं कि उस एज में अगर किसी टीचर को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है
कि आपको एक मैथ्स लैब की किताब लिखनी है, तो कितनी एक्साइटमेंट हुई होगी। मैंने खुशी खुशी वो अपनी बात प्रिंसिपल मैम से कही। और मज़ेदार बात यह है कि हमारी जो प्रिंसिपल मैम मिसेस दत्ता पहले स्कूल में थी यहाँ पे, अब वो रिटायर हो गई हैं, वो हर काम के लिए यस करती थी। तो एक वो भी बहुत बड़ी बात होती है एक टीचर की लाइफ में कि जो आपके स्कूल में आपसे बड़े हैं, आपसे सीनियर हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप 5 दिन के लिए मुंबई जाओगे, आप वहाँ पे रहोगे उधर। मैंने कहा हाँ मैम, मैं चली जाऊँगी। और मैंने वहाँ पर जाकर होमी भाभा रिसर्च सेंटर में बहुत अलग अलग एक्सपर्ट लोगों के साथ, सिर्फ मैं ही नहीं थी उस किताब को लिखने के लिए, और भी बहुत सारे CBSE के मैथ्स एक्सपर्ट्स थे। और वहाँ पे होमी भाभा रिसर्च सेंटर का जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ से एक दिमाग में आया कि काम करने के लिए लोग घड़ी नहीं देखते हैं, काम करने के लिए वो ये नहीं देखते कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग काम करते थे वो दिन रात नहीं देखते थे, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करते थे, एक्सप्लोर करते थे और आउटपुट लाते थे। और मैंने देखा कि वहाँ पे उनकी मैथ्स लैब में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई थी। और हमने एक टीम में मैथ्स लैब की 9th क्लास की जो मैथ्स लैब मैनुअल है वो बनाई। जब हम वापस आए तो SD पब्लिक स्कूल में उस किताब की बारे में जो भी एक्टिविटीज़ थी, डेमोन्स्ट्रेशन होनी थी। वहाँ पे प्रिंसिपल अनीता शर्मा मैम हैं, वो भी एक मेंटोर की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया। तब मुझे बड़ी घबराहट होती थी कि मैं कैसे बताऊंगी बाकी टीचर्स को कि ये एक्टिविटीज़ कैसे होनी है। बट फिर मैं गई। मैंने उस समय, मुझे याद है कि वो स्पीच मैंने अपनी लिखी थी। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ जाके इसे पढ़ूंगी, तो मैं वहाँ गई। वो स्पीच तो मेरी साइड पे ही रह गई और मुझे तो पता ही नहीं कि जो मैंने वहाँ लिखा था वो मैंने बोला कि नहीं बोला, बट इट वॉज हाईली अप्रिशिएटेड। रीज़न इज़, जो काम आपने खुद किया होता है तो आप जब उसे बताते हो तो उसमें एक नेचुरल फ्लेवर सा आता है, और वो आया वहाँ पर। उस इंसिडेंट ने एक बड़ा हौसला दिया मुझे एज अ टीचर कि यस, अभी बहुत कुछ है लाइफ में करना, सिर्फ यही नहीं है कि ये एक्टिविटीज़ कर दी और लाइफ रुक गई। थोड़े दिनों के बाद CBSE से एक और लेटर आया कि अब आपको 10th क्लास का मैथ्स लैब मैनुअल लिखना है, आप उस टीम में सिलेक्टेड हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने जाकर वो सारा जो भी 10th क्लास की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें डिज़ाइन किया। और फिर मुझे एक मौका मिला अच्छे लोगों के साथ काम करने का, सीखने का, और मैंने होमी भाभा रिसर्च सेंटर में दोबारा जाके 10th क्लास की बुक में भी कंट्रीब्यूशन दिया। फिर जर्नी रुकी नहीं, 3rd से 8th क्लास की मैथ्स लैब की बुक लिखने का मौका मिला। अब आप ये सोचो कि मैं 11th क्लास मुझे पढ़ानी और 9th 10th की मुझे एक्टिविटीज़ करानी, लेकिन मुझे 3rd से लेके 11th 12th तक का मैथमेटिक्स पढ़ना, क्योंकि किताब लिखनी है। तो एक टीचर इवॉल्व हो रहा है एक बेटर टीचर की तरह और सीख रहा है एक दूसरे से। तो ये मौका एक लाइफ में मिला जिससे एक बदलाव आया। उसके बाद CBSE में CBSE इंटरनेशनल का 9th क्लास का और 10th क्लास का एज मटेरियल डेवलपर काम किया और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने से कुछ सीखने को मिला। और ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में मैथमेटिक्स लेबोरेटरी में बच्चों की तरफ पहुंची। ये सबसे पहला पड़ाव था मेरी लाइफ में प्रोफेशनल डेवलपमेंट का या प्रोफेशनल ग्रोथ का। Being a master trainer, Rashmi Kathuria, she has taught GeoGebra to the master trainers also. GeoGebra is a open source. Here, the students can explore themselves, like how to study geometry and algebra, or how to study geometry through algebra or algebra through geometry. So she has, you can say, because the algebra, especially algebra, is very poor. You can see, बच्चों का आज की डेट में देखोगे तो मैथमेटिक्स में, जैसे वी इंट्रोड्यूस अलजेब्रा इन क्लास 6th, so till class 5th they score maximum marks. When the algebra comes, they start scoring less because there is a fear. So through this open source they can search themselves and the students are learning themselves.
जब आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिलता है तो आपके पास एक टैगिंग हो जाती है, ठीक है, लोग आपकी तरफ देखते हैं। काम तो आप पहले भी कर रहे होते हो, लेकिन ट्रेंड ऐसा है, कल्चर ऐसा है कि तब आपकी पहचान बनती है। तो मैं ये कहूँगी कि सन 2007 में जब मुझे फर्स्ट प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला, तब मेरी एक पहचान बनी। जब मैंने कुछ वर्कशॉप्स वगैरह की तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो एक कहते हैं कि लाइफ में एक परिवर्तन आता है, तो वो परिवर्तन 2007 के बाद और ज़्यादा परिवर्तन आया। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, मैंने ट्विटर पे अपना अकाउंट क्रिएट किया और यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड किए और अपना जो भी मैं काम करती थी उसको ब्लॉग के ज़रिए शेयर करना शुरू किया। अब यहाँ पे बात रुकी नहीं। जब बच्चे क्लास में आते हैं, आप बच्चों से इंटरैक्ट करते हो, वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, और जब मेरे पास कोई बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम लेकर आता है तो मेरे दिमाग में एक उधेड़ बुन सी शुरू हो जाती है कि इस बच्चे की मदद कैसे की जाए, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, उसकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं। तो टेक्नोलॉजी की मदद से 24x7 लर्निंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पॉसिबल हो पाया। मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग माई KHMS मैथ क्लास, जो मैथ का क्लास का ब्लॉग है, वो बनाया। उससे एक फ़ायदा ये हुआ कि उस पर मैं बच्चों के लिए जो भी क्लास में हम कराते थे वो इंस्ट्रक्शंस पहले ही पोस्ट करती थी, तो पेरेंट्स भी देख पाते थे कि मैथ्स लैब में क्या हो रहा है और बच्चे भी देख पाते थे कि हमें अगली क्लास में क्या करना है। तो जो क्लास का टाइम होता था वो कि मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ या बच्चे नोट कर रहे हैं, वो सब नहीं होता था, वो बच्चे उससे प्रैक्टिस करते थे। तो अब आप ये देखेंगे कि मैथ्स के कुछ यहाँ पे मॉडल्स हैं, ये सब बच्चों ने खुद बनाए हैं और ये सारी इंस्ट्रक्शंस हम ब्लॉग पे पोस्ट करते थे और वो बच्चे इन सब चीज़ों को बनाते थे और मैथ्स को विजुलाइज करते थे। तो मैथ्स लैब में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्ट्रैटेजीज़ में जैसे ओरिगेमी, तो पेपर फोल्डिंग से कोई चीज़ विजुलाइज करना, जैसे एक्सपोनेंट्स हैं उन्हें विजुलाइज करना, या कोई भी ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें विजुलाइज करना, वो हम ओरिगेमी के थ्रू करते हैं। जियो बोर्ड्स हो गए, मॉडल्स हो गए, मॉडल मेकिंग हो गया, ये सारे एक्टिविटीज़ करते करते बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है जो उन्हें समझने में, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करता है, नंबर 1। नंबर 2, एक टीचर और बच्चों के बीच में जो रिश्ता बनता है जिससे कि वो घबराता नहीं है और टीचर से कुछ भी सवाल पूछ सकता है, उसमें भी फ़ायदा होता है। और नंबर 3, जो भी कोई चीज़ वो किताबों में पढ़ रहे होते हैं उससे हटकर अंडरस्टैंड करने का उन्हें मौका मिलता है, और वो कोई भी चीज़ जो अपने हाथ से करके देखते हैं उसे वो ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। सभी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, एक टीचर की लाइफ में भी चैलेंजेस होते हैं। तो आप उन चैलेंजेस को अगर ऐसा सोचेंगे कि ये A4 साइज़ शीट की तरह है तो वो है। अगर एज ए टीचर मुझे ये पता लगा कि बच्चों को मैथ समझ में नहीं आता और मैं उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ती, तो ये शीट की तरह वैसे ही रहेगा, चैलेंजेस की तरह, प्रॉब्लम्स की तरह। तो आप इमेजिन करिए कि मुझे प्रॉब्लम्स पता चल गई हैं, 5 साल के बाद मैंने कुछ नहीं किया, ये प्रॉब्लम्स ऐसी ही हैं। 10 साल के बाद मुझे प्रॉब्लम्स पता हैं लेकिन मैंने सोल्यूशन की तरफ अग्रसर नहीं हुई, तो ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही हैं, रिजिड हैं। अब आप ये देखिए, मैथमेटिकली ये एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी बाउंड्री रिजिड है। अगर ये रिजिड रहेगा, रिजिड माइंडसेट रहेगा, तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊंगी या कुछ ऐसा नहीं कर पाऊंगी या अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी। तो हम इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं कि हमें पता है कि हमारी लाइफ में 10 चैलेंजेस हैं, डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं, टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है और भी बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। अब हमें इन प्रॉब्लम से बाहर आना है। आप एक छोटा सा टास्क है, हम वो करते हैं, बड़ा आसान सा भी लगेगा कुछ लोगों को, कि मुझे इस शीट में एक होल करना है जिसमें से मैं पास हो जाऊं। तो जैसे ही मेरे पास ये प्रॉब्लम आई तो सोचना शुरू किया, ठीक है, कुछ लोग ऐसे क्रिएटिव हैं वो कहेंगे ठीक है आप एक छोटा सा होल बना दीजिए, पेपर पे लिखिए अपना नाम और पास कर दीजिए, बहुत बढ़िया। वो एक तरीका है
मैं उसको कहती हूँ वो अपने दिल बहलाने के लिए कि मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। बट हाँ, एक अप्रिशिएट करने वाली बात है कि हमने शुरुआत की। अब असली में क्या ये पॉसिबल है? हाँ, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो हम जब तक ये रिजिड माइंडसेट को ख़त्म नहीं करेंगे, वो चैलेंजेस को हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं कि जो हमारा माइंडसेट है उसको हमने मोल्ड किया, फोल्ड किया, कुछ उसमें क्रिएटिविटी लाते हैं। अब आप नोटिस करिए कि मेरे पास ये जो नीचे शीट बनी हुई है ये क्लोज्ड है और ऊपर ओपन है। ऊपर ओपन है, इसको मैं कहती हूँ फ्रीडम। हर एक को लाइफ में कुछ ना कुछ फ्रीडम मिली है, वो फ्रीडम हम यूज़ करते हैं। और ये हमारी चैलेंजेस। अब हम ये कहते हैं कि इतने सारे चैलेंजेस हैं इसलिए ये बाउंड्री रिजिड है। तो हमें अब ये प्रॉब्लम पता है, तो हम क्या करते हैं? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने मूवमेंट शुरू की कि कुछ एक एफर्ट करना शुरू किया। तो जब हम मूवमेंट करते हैं, कुछ एफर्ट्स करते हैं, तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होता जाता है। अब आप ये देखिए, कोई भी एक एफर्ट है, एक शुरुआत है लाइफ में, जब हम करते हैं, शुरू में हमें कोई नहीं देख रहा, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। आप करते रहिए काम। आपको लगता है कि इस काम से कुछ लोगों को बेनिफिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। आप उन कंसिस्टेंट एफर्ट्स को करते रहिए। ये भी एक मैथ्स का हिस्सा है कि हमें बोलते हैं ना कि मैथमेटिक्स कम्स बाय प्रैक्टिस। बिल्कुल सही बात है। जब उतनी प्रैक्टिस करनी है जब तक वो हमारे दिमाग में ना आ जाए। कुछ बच्चों को एक बार ही प्रैक्टिस करने से आ जाता है, कुछ बच्चों को 4 बार ही प्रैक्टिस करने से आता है। तो वो हमें देखना है और डिसाइड करना है कि हमें कितनी बारी प्रैक्टिस करनी है। तो कंसिस्टेंटली वी आर डूइंग द एफर्ट्स। नाउ यू सी दैट सम चेंज इज गोइंग टू हैपन। क्या अब आपको वो शीट नज़र आ रही है जो वो पहले थी, A4 साइज शीट? नहीं, उसमें कुछ बदलाव आ रहा है। तो अब मैजिक होने वाला है। मैजिक कब होगा? कि जब हम सबसे पहले एफर्ट्स करना शुरू करेंगे और उसके बाद ये जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स थे, ये क्लोज्ड एंड है ना, ये हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमें रोक रही है। कोई बात नहीं, हमें कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, बट वी विल कीप ऑन वर्किंग। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कम रिसोर्सेज हैं, लेकिन मेरे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके मैं बेस्ट कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना, 2 बच्चों को भी कंपेयर नहीं करना, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। इसके बाद ऐसे करते करते अपने जितने भी आपके रोड ब्लॉक्स हैं उनको हटाएगा कौन? उनको हम खुद ही हटाएंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे ये शेप चेंज हो गई, और जो वो शेप थी जो शुरू में हम बनाना चाहते थे, हम क्या करना चाहते थे शुरू में? हम ये करना चाहते थे कि इसमें से एक एलिफेंट निकल जाए या हम खुद निकल जाएं। अब आप देखिए हम ये निकल गए। अब मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि ये सब करने के बाद इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट आया। नंबर 1, एज अ मैथ्स टीचर आई एम इवॉल्व्ड। नंबर 2, अभी भी जर्नी ऑन है, अभी ये ख़त्म नहीं हुई है। नंबर 3, आप कनेक्ट हो पाए हैं कुछ डिफरेंट टाइप के लोगों से जिनसे आपको एनर्जी मिलती है और आप और आगे काम करने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, जो बच्चे क्लास में हैं उन तक पहुंच पाना, यानी सबके साथ कनेक्टेड रहना 24/7। अब बच्चों में किस तरीके का बदलाव आया है कि वो और कॉन्फिडेंट हैं, मत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। यानी जो पहले वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे या क्वेश्चंस पूछ नहीं पाते थे, अब वो अपने सवाल पूछते हैं और उनको उनके क्वेश्चंस का जवाब मिलता है। और उन बच्चों में ये बदलाव आया है कि उनमें लाइफ स्किल्स आई हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और शेयरिंग का एटीट्यूड डेवलप हुआ है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके, जिन्हें कहते हैं कि डॉट्स अलग अलग थे, वो कनेक्ट होके एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी शेप बनी है। Hello everyone, I am Vijeta Panjwani and I am one of the curious student of Rashmi ma'am. Ma'am tells us many different ways, many activities to learn in a new way.
I don't need to go too far to tell an example of this. Last year, I was very doubtful that how to prove angle sum property. Ma'am said, no problem, be confident, go and show whatever you know. I'll record your video and put it on the internet. You will be famous there. And that not only helped me to increase my confidence, but that also helped me to learn angle sum property. So this was very interesting, and this was just an example. And this way, we keep on learning creatively in this Planet Infinity, that is our maths lab at KHMS.